Hi, I'm going to start a new chapter, and name of the chapter is differential equation. So, here I'm going to write the name of the chapter. Just a minute. Okay. So, the name of the chapter is differential equation. Chapter is quite easy. You can say that it is a practice chapter of um derivative and integration. So if you want to practice deeply derivative and integration, this chapter is very useful for you. Now we will see the basic terminology. Terminology. Now if someone is asking what is mean by basic terminology, it means that what are the concepts required. So number one, we need what? Independent and dependent variable. So if y equal to f of x, if y equal to f of x is independent, x is known as independent variable, and y is known as dependent variable. Dependent variable. So this is what independent and dependent variable. The second terminology which we need is the differential coefficient. This is what differential coefficients. Differential coefficients. So don't worry, no need to note down all those notes because I will give you along with my notes. So after this lecture, you can see the link in description column. There notes along with MCQs are there. Okay, so differential dy by dx, d2y by dx square. Hopefully you know that what is mean by d2y by dx square. D3y by dx cube, that is what the third order derivative, etc. are known as differential. It's a differential coefficients. So keep in mind what is mean by differential coefficient. Next I am moving, and the third concept which I need is arbitrary constant. Now what is mean by arbitrary constant? So for that, if this line is ax plus by plus c equal to 0, what is the equation of the line which is parallel to this? But obvious, ax plus by plus any constant, you can say that d equal to 0. If two lines are parallel, only their constant differ. This is what ax plus by plus say k equal to 0. So like my father, I, we all have studied pi equal to 3.142 or pi equal to 22 by 7. So this is the pi is known as fixed constant. Fixed constant because value remains same over the time, but 24, 25, 26 are the constant. These are the constant. These are the constant, but I can change. Say for example, this is the summer season. I can adjust the temperature of my air condition, so I can adjust with the help of remote control. So you can say that all those numbers are constant, but I can adjust the constant as per my need. Therefore the numbers, these numbers are which are changing, are the arbitrary constant. That's what I told you, no? If the lines are parallel, their constant only changes. One more example. Consider what is the equation of the line which passes through the origin. Y equal to 2x,
y equal to 5x, like that. So this number, it is in the form of what? Y equal to mx na. This m is changing, therefore m is known as arbitrary constant. Okay, so now I'm taking eraser to erase everything. So let me do that. So just once again, please learn what is mean by डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब चीज़ें पढ़ लो। डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, क्योंकि इन सब चीज़ों के जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती जाएगी वन बाय वन। ठीक है, देन वी आर फर्दर मूविंग। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पढ़े हो? पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो क्या कोई बच्चा मुझे पॉलिनोमियल का मतलब बता सकता है? ठीक है, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? तो लाइक एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जानते हो ना? और फिर अगर मैं लिख दूँ x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आदत सी पड़ गई हमें बोलने की। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ x³ माइनस 2x² प्लस साइन x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? माई बेसिक क्वेश्चन इज वेदर इट विल बी अ पॉलिनोमियल। पहले ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो एक बच्चा आंसर में हो सकता है यस भी बोले, तो दूसरा बच्चा आंसर में नो भी बोले, तो ये कौन बनेगा? कौन बनेगा? करोड़पति टाइप हो गया। तो आंसर है नो। कोई बच्चा बोले कि नो क्यों है? तो ये साइन एक्स की वजह से। बोले ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है या जो भी वेरिएबल होता है जो हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं, तो पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस माइनस और मल्टीप्लाइड साइन। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन रहेगा। पावर ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसके पावर में जो नंबर्स होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। जैसे इधर भी एक नंबर x है तो x का पावर क्या है? 0। पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो अब यहाँ पर हो गया साइन x। क्या बन गया? साइन x। तो ये जो x है, जो वेरिएबल हम कंसिडर कर रहे थे, वो साइन के टर्म्स में वेरी करेगा। जैसे साइन, उसकी वजह से साइन वेरी करेगा, तो ये आने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर एक बार मैं पॉलिनोमियल बता दूँ, जैसे x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस साइन है। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, ये पॉलिनोमियल है। तो बच्चे ने बोला, मैंने पूछा क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, तेरे दिमाग में क्यों आया था? सर इधर जैसे आपने साइन x बताया था, मैं साइन a को कह रहा था। नहीं, यहाँ साइन ए कांस्टेंट है। हाँ, यही साइन एक्स हो जाता है। अभी जैसे मैं देता है x⁴ माइनस 5x³ प्लस 7 ln x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें ln x आ गया। तो इसी तरह आपको पॉलिनोमियल समझना है। तो पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में x² माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में है, x और y में। x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³ इक्वल टू 0, ये दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। xy z माइनस x²yz प्लस xyz² माइनस 7xy प्लस 2yz कुछ ऐसे प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो फिर कोई एक बच्चा बोलेगा सर पॉलिनोमियल और इस चैप्टर का क्या लेना देना है?
बता रहा हूँ मैं, पॉलिनॉमियल और इस चैप्टर का लेना देना बता रहा हूँ मैं। सो लेट मी इरेज दिस। अब पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये वर्ड हम थोड़ा सा याद रखेंगे। पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एक नया सा टर्मिनोलॉजी आ रहा है, पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। कोई बोलेगा ये क्या है, मतलब तो मतलब वही जैसे हमने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल लिया ना पॉलिनॉमियल, उसी तरह का कुछ है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में होना चाहिए। तो कोई बच्चा बोले मतलब, तो मैंने कहा कि ये है d2y/dx², ठीक है, का क्यूब -3 dy/dx प्लस x प्लस x² y इक्वल टू 0। तो इसे हम कहेंगे पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। फिर सवाल उठता है सर क्या है ये, मतलब किस तरह काम कर रहा है, इसका क्या लॉजिक है। अभी जैसे ये भी एक पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे मान लो ये x की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये y की तरह काम कर रहा है। ये भी पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इनफैक्ट ये भी एक पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। फिर एक बच्चा बोलेगा नहीं सर ये पॉलिनॉमियल नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स आ गया। मैंने बोला पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब हाँ, अगर कोई कहता है कि dy/dx² प्लस साइन dy/dx, क्या ये पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, देखो जो मैंने टर्म यूज किया है पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला टर्म यूज किया है, तो क्या ये पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो आंसर है नहीं। ये तो फिर इसके लिए तो एक ही आंसर है, नो, ये तो नहीं है। बाकी सब तो पॉलिनॉमियल है, 1 2 3 पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। फिर एक बच्चा बोले कि ठीक है ये चलो समझ में आया, आप आगे क्या समझाना चाहते हो। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये छोटी छोटी बातें हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत एक बड़ा सा रोल प्ले करते हैं। फिर सवाल उठता है कि और कोई टर्म जैसे काम आएगा। अब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सो इसका डेफिनेशन है, इक्वेशन इन्वॉल्व वेरिएबल्स। देखो जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम एक्स एंड वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो dy/dx d2y/dx² इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट आर्बिटरी कांस्टेंट, विदाउट आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि आर्बिटरी कांस्टेंट होता क्या है, ए बी सी ऐसे अल्फाबेट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पॉलिनॉमियल के फॉर्म में है, इज नोन एज, इसे हम कहते हैं इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर एक बच्चा बोलेगा मतलब क्या है, देखो x² d2y/dx² प्लस xy/dy/dx माइनस y³ इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन।
फिर एक बच्चा शायद एक क्वेश्चन ही रही सॉरी क्वेश्चन कह सकता है कि सर कैसे बनाते हैं, मतलब इसमें क्या क्या है। ये तो अभी आप जो जा रहे हो उससे तो हमको बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आई है कि होता क्या है, लेकिन ये कहाँ से आते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सकती है। फ़िलहाल के लिए तो मैं बताऊंगा क्या एप्लीकेशन है, इसको तो हम एंड में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको जस्ट ये पढ़ा रहा हूँ कि डिफरेंशियल होता क्या है। ठीक है। अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई कि ऑर्डर एंड डिग्री। एक नया सा टर्म आ गया कि ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा। हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the equation, in the equation represent order of, शॉर्ट में DE कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल देता, ये देखो स्टार मार्क डाल दिया कि नॉट ऑलवेज। एक बच्चा बोले इसका मतलब क्या है। देखो ऑर्डर और डिग्री में कुछ फर्क है। ठीक है, ऑर्डर और थोड़ा सा मैं इसे सही कर लेता हूँ। ऑर्डर और डिग्री, देखो ऑर्डर तो किसी भी केस में एग्जिस्ट ही करेगा। तो नंबर एक, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट। ऑर्डर के लिए तो तुम्हें डरना नहीं है। तो जब तुम ऑर्डर निकाल रहे हो मतलब ऑर्डर तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा, डिग्री, इसमें इसे पहला कहते हैं डिग्री में और मे नॉट एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट। फिर एक बात आ गई कि सर ऐसे कैसे डिग्री एग्जिस्ट होगा। डिग्री एग्जिस्ट ओनली व्हेन, डिग्री एग्जिस्ट ओनली if equation is represented, equation is represented in the form of, in the form of, in the form of polynomial of differential coefficient, of differential coefficient। फिर एक बच्चा बोलेगा कि अरे क्या लिख रहे हो सर, ये चीज़ तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही है, आप बोलना क्या चाहते हो। तो ठीक है, तुम्हारे नोट्स में भी मैंने लिख के दिया है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जब चीज़ जब न्यूमेरिकल के साथ आप करते हैं ना तो ब्रीफ हो जाती है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब मैं ऑर्डर एंड डिग्री पे न्यूमेरिकल ले रहा हूँ और ऑर्डर एंड डिग्री पे असाइनमेंट भी तुम्हें मैं दे रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशियल का, बहुत छोटा सा लेक्चर है जिसमें जस्ट तुम्हें फटाफट आंसर करने हैं। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल नंबर जब मैं 1 लूँगा ना तब तो मैं समझेगा। d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। ऑर्डर पूछे, ऑर्डर पूछे तो फिर इधर उधर देखना नहीं है, जो सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव होगा। कोई बोले बड़ा वाला डेरिवेटिव मतलब dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर
d2i/dx², सेकेंड ऑर्डर, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें d2i/dx² क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है इसलिए बड़ा माना जाता है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन जब डिग्री पूछे ना तो पहले ये देखो कि क्या ये पॉलिनॉमियल है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। अब एक बार फिर मैं ये चीज़ रिमाइंडर आपको दे दूँ कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में किसे कहते हैं। तो देखो इसका पावर क्या है, इसका पावर है रेस टू 1, इसका पावर है क्या रेस टू 1। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के नॉन नेगेटिव पावर्स हैं। ठीक है, हाँ, तो जो सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव होगा उसका पावर डिग्री बताएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं कि x d2i/dx², ठीक है, प्लस y अपॉन d2i/dx² का क्यूब, d2i/dx² का क्यूब इक्वल टू dy/dx। क्या ये ऑर्डर आएगा? तो देखो ऑर्डर बोला तो जा सकता है, लेकिन ना ऑर्डर तो अभी भी कोई दिमाग में डाउट नहीं कि क्या होगा, ऑर्डर तो दिख भी रहा है, लेकिन डिग्री थोड़ी सी यहाँ पे डिफाइन करना डिफिकल्ट है। क्योंकि देखो ऑर्डर तो यानी केस में जो सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर दिखाएगा, बट डिग्री देखने के लिए ना इक्वेशन का पॉलिनॉमियल होना जरूरी है। मतलब कोई कहे कि पॉलिनॉमियल होना जरूरी है, इसका क्या मतलब है, आप क्या बताना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूँ, अब जैसे देखो ये पावर हो जाएगा -3 अगर ऊपर जा रहा है, और -3 नेगेटिव पावर है, और पॉलिनॉमियल में नॉन नेगेटिव पावर्स आना चाहिए, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो इट इज एलसीएम लेने के बाद x d2i/dx² का पावर 4 प्लस y इक्वल टू d2i/dx² का क्यूब, d2i/dx² का क्यूब, और ये आ गया dy/dx। हाँ, अब ये करने के बाद कहीं पे नॉन नेगेटिव पावर की बात नहीं हो रही है। और कोई बोले कि ये कैसे आपको पता चल रहा है पॉलिनॉमियल है? अरे d2i/dx² को x मान लो, ये y मान लो, तो ऐसे x³ y, तो ये डबल वेरिएबल पॉलिनॉमियल हो गया। इस तरह का टेंशन नहीं लेना है, ऑर्डर तो दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है 2, और डिग्री जो दिख रहा है वो है जो ये है ना, ये और ये दोनों में से सबसे बड़ा ये है, तो डिग्री आ जाएगा 4। अच्छा, कभी कभार ना ऐसा करने से कुछ कॉमन टर्म्स दोनों साइड के कट जाते हैं, ठीक है, तो वो भी याद रखना। फिर ऑर्डर डिग्री हम यहाँ तक पढ़ने के बाद इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तो ऑर्डर डिग्री करेंगे। ऑर्डर डिग्री में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ऑर्डर डिग्री में भी बहुत सारे। अब कोई कहे कि सर थोड़ा नॉट डिफाइंड डिग्री का बताओ ना, आपने बोला था डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड इफ इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, मैं अब उस चीज़ को ऐसे लेता हूँ। अब किसी बच्चे ने बोल दिया d2i/dx² प्लस साइन dy/dx, साइन dy/dx, एग्जाम्पल 3 है, तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो फिर एनी केस में वही होगा जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है। तो किसी एक बच्चे ने बोला कि सर उसी का पावर डिग्री बताता है। हाँ, उसका पावर डिग्री तब बताता है जब वो पॉलिनॉमियल में लिखा जाता है। अब ये पॉलिनॉमियल है, आंसर है नहीं, तो फिर डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर मैं बोलूँ कि पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये वर्ड थोड़ा नोट्स में ढूंढो, ठीक है, और समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, d2i/dx² का पावर 3 साइन ऑफ x प्लस 3 ऑर्डर। फिर बच्चा बोलेगा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2, डिग्री, डिग्री चिल्ला के बोलेगा नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि सर साइन एक्स आया हुआ है। नहीं, मैंने बोला ना साइन एक्स से नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पे साइन dy/dx था। डिफरेंशियल इन सॉरी पॉलिनॉमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब dy/dx को साइन नहीं होना चाहिए, एक्स वाई को, ये तो वेरिएबल है, उसको रहेगा चलेगा। यहाँ पे डिग्री जो आएगी वो 3 आएगी। फिर एक बार बच्चा बोलेगा सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा एक और क्वेश्चन मुझे बताओ जो मुझे समझना चाहिए। फिर मैं बोलूँ d2i/dx² इक्वल टू e⁻dy/dx। फिर बच्चा बोलेगा मैं क्या करूँ? अच्छा, अगर तुम सिंप्लीफाई भी करते हो ना, तो फिर यहाँ पर ln आ जाएगा, ln ऑफ d2i/dx² इक्वल टू dy/dx। फिर ये पॉलिनॉमियल है नहीं,
तो ऑर्डर तो तुम्हें दिखेगा, ऑर्डर तो एनी केस में तुम्हें 2 दिखेगा, बट डिग्री कोई तुमसे पूछेगा तो फिर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड आएगा। फिर एक बंदे ने एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि चलो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। y इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। बताओ ये इसका ऑर्डर डिग्री बताओ। बच्चा बोलेगा ऑर्डर तो 1 है, डिग्री तो नहीं बता सकता, तो इसको ध्यान से थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जिस बच्चे ने सोचा तो उसे ध्यान आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कुछ ऐसे जा रहा है। और ये क्या होता है, बच्चे को अगर समझ में आ रहा है तो वो कह देगा सर ये तो ई रेस टू एक्स होता है। ये कुछ और चीज़ नहीं दी गई है, ये ऐसे दिया गया वाई इक्वल टू ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स। फिर बच्चा फट से बोल देगा सर डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स है, तो गलत है। लॉग लेते ही लॉग वाई टू द बेस सी डी वाई बाई डी एक्स, मैंने बोला ना यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री दोनों है। ऑर्डर जो है 1 है, डिग्री जो है वो भी 1 है, डिग्री 1 है, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में ये पॉलिनोमियल है। बोलेगा लॉग आया है, लॉग तो वेरिएबल को आया है, डिफरेंशियल को नहीं आना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इनको नहीं आना चाहिए, ये आ गया 1। तो आई होप ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते एक आध और न्यूमेरिकल लेके बस आज का ये लेक्चर ख़त्म कर देते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री पे बेसिकली आपका असाइनमेंट्स होगा आज, ठीक है। तो जब आप ये करोगे, अच्छा ये सब चीज़ें ना बोलने से बहुत कम समझ में आती है, इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो और कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करते हो तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। चलो अभी एक न्यूमेरिकल और मैं ले रहा हूँ, ठीक है। वो न्यूमेरिकल है डिटर्मिनेंट, एग्जाम्पल ये डिटर्मिनेंट एक्स वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, 0 0 1 1 वाई 1 और वाई 3 वाई 2। तो जिन बच्चों को मालूम होगा वाई 2 और वाई 1 किसे यूज़ करते हैं, वाई 1 वाई डैश, ये सब डी वाई बाई डी एक्स के लिए यूज़ करते हैं। वाई 2 वाई डबल डैश ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए यूज़ करते हैं। अब इसे हमने ले लिया x, तो 3y2 यानी कि 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बस ये इतना सॉल्व हो गया। दिखने में तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, बट इतना भी खतरनाक नहीं है। ऑर्डर 2, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, डिग्री के लिए उसका पावर डिग्री जो है वो 1 आ जाएगी। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑर्डर डिग्री का ये लास्ट प्रॉब्लम है। और भी क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री के हैं, बट जब मैं फॉर्मेशन बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि और क्या क्या ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चन बनेगा। तो अब मैं बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, +3। अब एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, अभी क्या करूँ सर, करना क्या है, ये क्यूब रूट है, ये 1/2 है, ऐसा पावर लो कि दोनों साइड से, ये रेडिकल पावर बोलते हैं, जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता है ना, रेडिकल पावर रिमूव हो जाए। तो 6 पावर लो, तो इसका 6 पावर मतलब 12 दे देगा, इसका 6 पावर मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब दे देगा, इसका 6 पावर मतलब का स्क्वायर कर देगा, डी वाई बाई डी एक्स +3 का स्क्वायर कर देगा। अब कोई बच्चा बोले इसे खोलना है, नहीं यार खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जो है वो 2 है, और जो डिग्री जो है
तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसी का हाईएस्ट ऑर्डर में, फिर बोलो हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर। बहुत सारे बच्चे इसमें एक गलती करते हैं, वो ऑर्डर के लिए जो डेरिवेटिव तो सिलेक्ट कर लेते हैं, बट डिग्री के लिए जो बड़ा पावर किसी और को है ना, वो भी वो बता देते हैं। तो ऐसे नहीं बताना, आपको ये बताना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका उसका सबसे बड़ा वाला पावर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन ख़त्म होता है। और जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसके नीचे जो लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, आप MCQ और नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं इतने लेक्चर नंबर 1 का। चलो, थैंक यू वेरी मच।